Hi. Today we'll be talking about livestock production management subject. This is a subject or this is one of the subjects in our veterinary science optional for UPSC, and we'll be covering the unit 1, which is outlined by UPSC in livestock production management. तो यूनिट 1 में जो हमारे टॉपिक्स है उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, फिर आता है इकोनॉमिक डेयरी फार्मिंग, फिर हम देखेंगे कि हमें डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, सो स्टार्टिंग अ डेयरी फार्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेयरी फार्म एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन डेयरी फार्मिंग. हर साल यूपीएससी में काफ़ी सालों में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं. जैसे वी कैन सी 2012 में है, 2014 में है, 2016 में है, ये भी 2016 में है, और ये क्वेश्चन 2023 में आया था, यानी कि लास्ट ईयर. सो इसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. इसको बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, इसको कर लोगे तो स्कोरिंग हो जाएगा ज़्यादा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. वील स्टार्ट विथ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, यानी कि CDF. ओके, छोटे में इसको CDF बोलेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ CDF. CDF को सबसे पहले डिफाइन करना ज़रूरी होता है. वेन एवर यू आर स्टार्टिंग एन आंसर, योर आंसर शुड ऑलवेज हैव अ डेफिनेशन और एन इंट्रोडक्शन, then it should have a body of the answer, and finally you should write a conclusion for that answer based on what you have written above. And सो इसीलिए हम लोग जब CDF के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे CDF की डेफिनेशन से. ओके, सो CDF यानी कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की डेफिनेशन है दैट इट इज़ अ बिजनेस ऑफ रेजिंग एनिमल्स, दैट इज़ डेयरी एनिमल्स, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स in order to sell it and have profit. Okay, so dairy farming, or rather commercial dairy farming as we are talking about, is the business of raising dairy cattle, producing milk and milk products on a large scale. ये important होता है for sale and profit. So whenever you are writing this, you should remember 5 keywords जो मैंने अभी बोले, ये जो मैंने यहाँ पे underline किया है. क्या है? business, raising dairy cattle, producing milk and milk products on a large scale for sale and profit. Okay. सो कंसिडरिंग दैट हम कमर्शियल स्केल पे बात करें, वेन एवर यू थिंक ऑफ द वर्ड कमर्शियल, आपके दिमाग में 2 चीज़ें आनी चाहिए. एक होना चाहिए कि वो बड़े स्केल पे हो रहा है, सो लार्ज स्केल, और दूसरा जो चीज़ आनी चाहिए शुड बी मनी. ओके, सो एनीथिंग दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम अ स्मॉल स्केल टू लार्ज scale is commercialized. Whenever you want to take operations from small scale to large scale, you need to utilize all the modern technologies that are coming in the market. Okay, so similarly commercial dairy farming also utilizes any and all modern agricultural technologies, practices and management strategies as well, because your management needs to be efficient in order to have excellent profits from your venture. Okay, so the goal of commercial dairy farm will be to maximize milk production. ओके, ऑफ कोर्स यू आर कमर्शलाइजिंग योर डेयरी फार्म, तो इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए उसमें से. करेक्ट. सो योर गोल, और रादर द गोल ऑफ अ कमर्शियल डेयरी फार्म इन दिस केस, because it's a business, you need to maximize milk production and you want to maximize your profits. That is why your products should be more, your sales should be more, your economics should be more, and your returns should be more. So that is always the goal of commercialization, कि आप कम input दे रहे हो and you're getting maximum profit out of it. Okay, and finally, India के अंदर our target of Indian scenario currently is that 2030 तक we need to or rather our target is producing the 1/3 of global milk production. That's what was reported in this paper. So 1/3 of global milk production is our target that we want to achieve by 2030. And if we want to do that, our targeted growth rate should be 9.4% for milk. That's targeted growth rate for milk production should be 9.4%. In order to achieve this growth rate, we need to ensure that हमारे देश में भी commercialization हो रहा है. वील टॉक मोर अबाउट इट कि हमारे देश में ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं है अभी तक. क्यों नहीं है, क्यों इंडिया में मिक्स फार्मिंग ज़्यादा होता है, वील टॉक मोर अबाउट इट लेटर. बट द नीड ऑफ द आवर इज़ दैट ज़्यादा से ज़्यादा हम कमर्शलाइज करें अपने डेयरी सेक्टर को, ताकि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन का गोल है वो अचीव हो. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट, दिस कैन बी द इंट्रोडक्शन टू द कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का सब्जेक्ट और टॉपिक रादर. ओके, ऑलराइट, सो मूविंग ऑन. If you are thinking about establishing a commercial dairy farm, there are certain things that you should have in your hand, which are known as requirements.
ओके, रिक्वायरमेंट्स कुछ होते हैं किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, इवन कमर्शियल डेयरी फार्म को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने ही कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि ये सब हमारे पास होना चाहिए कमर्शियल डेयरी फार्म बनाने से पहले. ओके, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्म? लेट्स टेक अ लुक एट इट. ओके, सबसे पहले चॉइस ऑफ ब्रीड, यहाँ आउटलाइन किया गया है चॉइस ऑफ ब्रीड. चॉइस ऑफ ब्रीड का ये मतलब है जब आप कमर्शियल लेवल पे मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हो, ऑब्वियसली यू वांट योर मिल्क प्रोडक्शन to be high. If you want your milk production to be high, who gives milk? Cattle gives milk. Okay, cattle and buffaloes will give you milk. So obviously you will choose the breeds which are high yielding animals. That is HF, Jersey. In case of exotic animals, then Sahiwal, Tharparkar. These are some examples. Okay, so HF and Jersey are exotic breeds of cattle which will give you high production. Sahiwal and Tharparkar are indigenous breeds of cattle which will give you high production. But in Indian scenario, we are also using HF crossbreds which are crossed with indigenous cattle. Okay, purebred HF crossed to indigenous cattle. So one of the HF crossbreds is Frieswald. I'm sure you've heard of it. It is a cross between HF and Sahiwal, and it is a very good milker, especially suited to our Indian scenario. क्योंकि इंडिया में जैसे conditions है, hot and humid conditions, heat ज़्यादा है, it's tropical. So HF as a purebred is not suited to India. So of course, choice of breed should be such that it is a high yielding variety. Okay. It will give you high milk yield. Then secondly, location of the farm. Location of the farm क्यों important है? You can't do something like हम ऐसे कर नहीं सकते कि हमने कोई भी जगह उठा ली और हमने उसको वहाँ पे अपना CDF एस्टैब्लिश कर दिया. ऐसे इसीलिए नहीं होता क्योंकि हर CDF को चलाने के लिए अपनी कुछ चीज़ें चाहिए होती है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कोर्स. तो लोकेशन ऑफ द फार्म उसके हिसाब से होनी चाहिए कि वहाँ वो चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है. और सबसे पहली चीज़ जो हमको चाहिए होती है वो है मार्केट. आप दूध बना रहे हो, योर कैटल आर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड दिस मिल्क हैज़ टू बी सोल्ड इन द मार्केट्स. इट इज़ अ पेरिशेबल प्रोडक्ट. सो आपकी जो लोकेशन है शुड बी क्लोज टू द मार्केट्स ताकि आपका प्रोडक्ट इन ट्रांजिट ख़राब ना हो जाए. ओके, सो लोकेशन ऑफ द फार्म शुड बी क्लोज टू मार्केट. मार्केट कहाँ होता है? सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट मिलता है आपको किसी भी चीज़ के लिए. तो क्लोज टू मार्केट भी कह सकते हैं, क्लोज टू सिटीज़ भी कह सकते हैं. सो लोकेशन ऑफ द फार्म शुड बी क्लोज टू मार्केट. थर्ड पॉइंट है लैंड अवेलेबिलिटी. आपकी लोकेशन आप जहाँ चूज़ कर रहे हो, यू शुड मेक श्योर कि वहाँ पे लैंड इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी. लैंड इज़ नीडेड फॉर टू थिंग्स, फॉर रेजिंग योर एनिमल्स एंड फॉर फॉर्डर प्रोडक्शन, फॉर फीडिंग योर एनिमल्स, producing fodder for feeding your animals. So the land that we are considering for fodder production should be fertile. Okay, तो दो चीज़ों के लिए लैंड चाहिए. एक है टू रेज योर एनिमल्स और दूसरा है to grow fodder for your animals. Okay, fourth point here will be mechanization and infrastructure. Like I talked about, commercialization मतलब large scale पे सब कुछ हो रहा है. अगर आप बिना mechanization के इस scale पे चले गए तो that means human labor यानी कि manual labor की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी. जहाँ manual labor आता है वहाँ there is always an error for there is always room for error. एक तो ये है. एंड सेकेंडली नॉट जस्ट एरर, इट कैन ऑल्सो कॉज डिलेज क्योंकि जो स्पीड है मशीन्स का, जो स्पीड है काम करने का, ऑब्वियसली ह्यूमंस का उतना स्पीड नहीं होता. तो दैट इज़ वाई मैकेनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक ऑटोमेटेड लेवल पे बिल्ड होना चाहिए. जो मैकेनाइजेशन का मतलब मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन बेसिकली. तो कमर्शियल डेयरी फार्म के अंदर ये होना हमारे पास ज़रूरी होता है. मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी मैकेनाइजेशन के, जैसे कि हमारे पास ऑटोमेटेड मिल्कर्स होते हैं कमर्शियल डेयरी फार्म के अंदर. हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग होती है. थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग का यूज़ ये है कि आप फार्म में लगा दो सब जगह पे एंड यू विल बी एबल टू डिटेक्ट द हीट सिग्नेचर ऑफ द एनिमल. हीट सिग्नेचर से आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती है, जैसे कि वेदर द एनिमल इज़ कंफर्टेबल इन इट्स ओन एनवायरनमेंट और नॉट, एंड यू कैन
can detect whether there is any fever in the animal, yeah, inflammation, or you can check for mastitis ki certain areas of the animal are inflamed, so that means that there is something wrong with that part, and you can monitor the animal that way. Okay, and not just one animal, you can monitor your all animals that way. So mechanization and infrastructure construction should be at an automized level, कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज करने की कोशिश करेंगे, हमारे फार्म को मैनुअल लेबर कम करने की कोशिश करेंगे. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज वेटनरी एड. बिकॉज यू आर कीपिंग एनिमल्स इन योर फार्म, it is obvious that you need to take a look at their health. You need to make sure कि आपके जो animals है वो healthy है. अगर वो healthy है तभी ही वो produce करेंगे. Okay, so that is one thing. Veterinary health and veterinary aid के अंदर आपके आ जाएगा animal health. Okay, animal health का look after, veterinarians will look after the animal health. What other things will they do? They are responsible for the reproductive management, यानी कि artificial insemination. This is the job of a veterinarian. So you need to do artificial insemination because obviously we are running a dairy farm. Animals will give milk only when they are pregnant, and after that only they will start lactating. Therefore, reproductive management is also the job of veterinarian. And thirdly, they need to draw, or a veterinary aid का importance ये होता है कि in case of a commercial dairy farm, you need to draw disease contingency plans. Why we should have this? In case of a disease outbreak, there should be a plan in place already ताकि immediate management होना start हो सके. Okay, so कोई डिले ना हो, कोई और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ना हो, और इस केस में भी वेटनरी एड का होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए. सो वेटनरी एड एक कमर्शियल डेयरी फार्म में 3 चीज़ों के लिए होना चाहिए. नंबर 1, मेंटेनिंग द एनिमल हेल्थ, दैट इज़ विद रेगुलर चेकअप्स, वैक्सीनेशंस. नंबर 2, मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द एनिमल, frequent checkups on reproductive parameters like intercalving interval, days open, etc. And in order to do artificial insemination of the animal. And number 3, in order to develop disease contingency plans in place so that for the effortless management of the dairy farm. Okay, ये हो गया veterinary aid and AI coverage. AI कवरेज इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फार्म के अंदर क्योंकि जेनेटिक एडवांसमेंट जो होते हैं, मतलब जैसे ओके, वील टॉक अबाउट दैट लेटर. AI कवरेज हम बाद में बात करेंगे. सो वेटनरी एड and AI coverage is the 5th point or the 5th requirement of a CDF. ठीक है. Finally, wherever you are working, हम कितना भी मैकेनाइज कर ले, मैनुअल लेबर की हमेशा ज़रूरत पड़ती है. So there should be availability of cheap labor, water and electricity in plenty because your farm is mechanized. You are keeping animals. When animals are kept in the farm, large amounts of water is needed just for the day-to-day activities. Okay, and electricity for mechanization, of course. जब आपका farm पूरा mechanized है तो वो electricity पे ही चलेगा. उसको अगर बीच में light चली गई तो your farm operations will stop and you will lose money every second. Okay, and finally ancillary structures. Ancillary structure का मतलब होता है any such structure which will support. ancillary का मतलब होता है supporting. ओके, बेसिकली तो हमारा मेन वेंचर क्या है? डेयरिंग. ओके, डेयरिंग के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? एनिमल्स को हम हाउस कहाँ कर रहे हैं? उनके पेन में, हाउसिंग पेन्स के अंदर हम उनको रखते हैं. उसके साथ साथ हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एंसिलरी स्ट्रक्चर्स, यानी कि इस चीज़ को जो सपोर्ट करे. तो हमारे पास एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ से हम लोग इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं. देन वी शुड हैव फीड स्टोरेज रूम्स. Okay, we should have cold storage rooms for milk. We should have a milking parlor that is separate. We should have a parlor, or we should have a pen that is a house for isolating the pregnant animals who are close to parturition. Okay, so ये सब भी हमारे पास होना ज़रूरी है. So it is a requirement or a prerequisite to establishing a dairy farm. So let's recap quickly. Requirement to establish CDF के अंदर सबसे पहले आ जाता है high yielding variety of breeds of cattle and buffalo. Secondly, location of the farm will be close to market. Thirdly, land should be available for housing animals and for fodder production. Fourthly, your farm should be mechanized and there should be high quality infrastructure. Number 5, there should be easy availability of veterinary aid and AI coverage. Number 6, there should be labor, water and electricity. And finally, you should build ancillary structures in your farm like feed storage room, cold storage rooms, milking parlors, in order to support your entire dairying, the entire venture of dairying. Okay, so we have covered the requirements which are needed to establish a commercial dairy farm. Now let's move on to key characteristics of a dairy farm. आप जब बोल रहे हो की कैरेक्टरिस्टिक्स,
तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक डेयरी फार्म है। सोचो कि एक डेयरी फार्म है कोई भी, अब आप कैसे बोलोगे कि ये एक कमर्शियल डेयरी फार्म है? तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि कुछ खास बातें होनी चाहिए इसके अंदर जिसकी वजह से आप बोलोगे कि हाँ ये कमर्शियल डेयरी फार्म है। तो जैसे हमने बात करी थी उसमें से खास बातें जो है ये यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि डेफिनेशन में ही कमर्शियल डेयरी फार्म की कि इट इज़ अ लार्ज स्केल ऑपरेशन, ओके, इट इज़ अ लार्ज स्केल बिजनेस। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, जो खास बात है CDF की, सबसे पहली खास बात यह है कि उसकी स्केल ऑफ ऑपरेशंस लार्ज होती है, हमेशा लार्ज स्केल पे ही ऑपरेट करता है। और इनका जो फोकस होता है प्रोडक्शन का, इट इज़ ऑलवेज टू प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट and get higher and higher economic returns. Okay, so this is the scale of operations. Secondly, management. मैंने पहले आपको बताया था जो हमारी मैनेजमेंट है, it should be such that हमारा पूरा ऑपरेशन स्मूथली चलेगा, राइट फ्रॉम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग टू स्लीपिंग ऑफ द एनिमल। सब कुछ जो हम फार्म के अंदर कर रहे हैं उसके अंदर अपना फीडिंग आ जाता है, ब्रीडिंग आ जाता है, अपना मिल्किंग आ जाता है, एनीथिंग, एक्सरसाइजिंग द एनिमल, रेगुलर वेटनरी चेकअप्स, हर चीज़ के लिए प्लान्स बनने चाहिए, ओके। तो मैनेजमेंट इंटेंसिव होना चाहिए। सबसे पहला कीवर्ड जो बोल सकते हैं मैनेजमेंट के बारे में इज दैट इंटेंसिव। सेकेंडली, जब चीज़ें साइंटिफिक होती है, साइंटिफिक का मतलब क्या, आप किसी चीज़ को एस्टैब्लिश कर रहे हो या किसी और ने उस चीज़ को एस्टैब्लिश किया है और उस प्रूफ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। बेसिकली साइंस इसी पे चलता है, साइंस चलता है एविडेंस पे और डेटा पे, ओके। तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो इंटेंसिव होता है, साइंटिफिक होता है और डेटा ड्रिवन होता है। हम इसको डेटा ड्रिवन क्यों बोल रहे हैं? डेटा ड्रिवन हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने बात की थी थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्टर्स की, ओके। थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्टर्स क्या करते हैं, मैंने कहा था दे विल डिटेक्ट इफ योर एनिमल इज हेल्दी और नॉट। In case your animal is not healthy, what you will do is you based on the information or the data that you got from that infrared detector, you will go to that animal and you will check personally, okay, whether the animal is healthy or not, and then finally according to that you will take a decision, right? So what happened is there was mechanization, you had records for the farm, उस records और mechanization के basis पे आपको कुछ data था आपके पास, आपने वो data लिया, उसको analyze किया, उस डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे आपने ये डिसाइड किया कि मेरा एनिमल हेल्दी है कि नहीं है। अगर मेरा एनिमल हेल्दी नहीं है तो मुझे वेटनरी ऑफिसर को बुलाना चाहिए। या आपने डिसीजन लिया किस बेसिस पे? डेटा के बेसिस पे। इसीलिए मैनेजमेंट जो होती है CDF के अंदर हमेशा डेटा ड्रिवन होती है, ठीक है। आप डेटा के बेसिस पे डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई नंबर 1 स्केल ऑफ ऑपरेशंस इज लार्ज, नंबर 2 मैनेजमेंट इज इंटेंसिव, साइंटिफिक एंड डेटा ड्रिवन। और पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिखा है जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। अभी मैंने कहा था कि हम AI की बाद में बात करेंगे, AI की बात हम यहाँ करेंगे। जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक एनिमल्स का स्टॉक था जो हमने खरीदा, जो हमें CDF चलाने के लिए, हमने फार्म चलाने के लिए हमने कुछ एनिमल्स मार्केट से उठाए। वी मेड श्योर दैट आवर एनिमल इज हाई यील्डिंग वैरायटी, ओके, हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ द एनिमल। सिर्फ ब्रीड ही हाई यील्डिंग नहीं होती, इवन विद इन द ब्रीड ऑल्सो हर एनिमल का प्रोडक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। सपोज आप HF क्रॉसब्रीड की बात कर रहे हो, एक एनिमल आपको 12 लीटर दूध दे रहा है एक दिन में, दूसरा एनिमल आपको दे रहा है से 18 लीटर दूध, ओके। ऑब्वियसली व्हेन यू आर बाइंग एन एनिमल फ्रॉम द मार्केट you will choose the animal who will give you 18 liters of milk a day, because आपका goal क्या है? You want to maximize your milk production and you want to maximize your economic returns. So when you choose the animal who is giving 18 liters of milk a day, उसी को लेके आपने अपना फार्म स्टार्ट किया। अब क्या करना है? आपको अपने फार्म को आगे बढ़ाना है। जब आप फार्म को आगे बढ़ाने की बात करते हो तो you are choosing certain animals from your farm to become parents for the next generation of progeny. हर एनिमल को चूज नहीं किया जाता, उसके रीजंस ऐसे होते हैं कि हम उसके प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स को देखते हैं, ठीक है, एंड सेकेंडली हम उसके जेनेटिक्स को देखते हैं। हर एनिमल का जेनेटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करने का अलग अलग होता है, उसकी वजह से हम हर एनिमल को चूज नहीं करते कि कि सारे एनिमल्स को हम पेरेंट्स नहीं बना देते नेक्स्ट जनरेशन के लिए। वी विल पिक एंड चूज which animal we want as the mother, and then we will get the semen of the best quality sire. Best quality sire हम किस basis पे बोल रहे हैं
कि उस सायर की जो प्रोजेनी है, ये प्रूव हो चुका है कि उस सायर की जो प्रोजेनी है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है कंपेयर टू सम अदर सायर, यानी कि सम अदर बुल। तो हमने उस सायर को चुना, उसके सीमेन को लिया एंड हमने अपने काऊ को इंसेमिनेट कर दिया। तो हमने क्या किया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया। तो हमारा जो ब्रीडिंग है, genetics and breeding, we are choosing good quality animals or the animals which have the good genes for milk production, and we are applying selective breeding program कि हम सब we are picking and choosing which animals we want from the female and from the male to become the parent for the next generation. So we did selective breeding. What else can we do here? In order to do selective breeding, we can utilize genomic advancements. Okay, genomic advancements like artificial insemination, multiple ovulation embryo transfer technology. Then we can use genomic chips. Genomic chips is something जिसके बेसिस पे आप एक एनिमल का प्रोडक्शन बचपन में ही पता कर सकते हो। यू नो देयर इज़ अ सायर, क्योंकि पहला जो डेटा होता है, देयर इज़ डेटा विच यू ऑलरेडी हैव, उसके बेसिस पे जेनोमिक चिप्स बनाए जाते हैं और उसके डिटेल में हम अभी जाएंगे नहीं। सो बेसिकली दिस इज समथिंग यू शुड नो कि जितना जल्दी एनिमल का सिलेक्शन हो जाएगा उतना जल्दी उसका उतना ज़्यादा वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, इजंट इट राइट? तो हम वेट करेंगे कि ये एनिमल प्रोड्यूस करे, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करें। इतना करने से बेटर है अगर बचपन में ही जीनोमिक चिप्स का यूटिलाइजेशन कर लिया एनिमल के बचपन में, तो what will happen is your animal will obviously throughout its life वो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देगा in terms of progeny or in terms of milk also. So genomic chip is one of the genetic advancements which we can use. फिर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन भी एक उनमें से है। ओके, एनीवे जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग इस तरह से होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक या फोर्थ खास बात अबाउट CDF इज़ दैट इट इज़ ऑटोमेटेड। जितना ऑटोमेशन हम कर सके उतनी हमारी फार्म की एफिशिएंसी बढ़ती है, बिकॉज लाइक आई सेड मैनुअल लेबर आप जितना भी रख लो, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर एरर and the speed of a human is not equivalent to a speed of a machine. So automation करना ज़रूरी होता है। thirdly, आप जब milking machine जैसी चीज़ यूज़ करते हो अपने फार्म के अंदर, तो you are ensuring that the quality of the product that you're producing is not contaminated due to human contact. जब ह्यूमन में हैंड मिल्किंग होती है तब देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि जो germs can get into the milk and they can spoil your milk. Okay, when milkers are there, automated milkers, ये chance बहुत ही कम हो जाता है. So automation will ensure that you have a speedy production. It will give you speed of production. It will ensure the quality of your product. Okay, so that's why you should do automation in your farm, and of course it will improve the efficiency of your farm. Next point is nutrition. Nutrition मतलब क्या? खाना। मतलब जब भी आप न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हो आपके दिमाग में खाना आता है, ठीक है, ऑफ कोर्स खाना। एंड उसके साथ साथ जब आप CDF के बारे में बात कर रहे हो तो आप प्रिसिशन एनिमल न्यूट्रिशन की भी बात करते हो। मतलब क्या? बेसिकली नथिंग बिग, इट्स ओनली दैट जितनी रिक्वायरमेंट उस एनिमल की है हर स्टेज के लिए, बचपन से लेके बड़े होने तक, व्हेन इट इज़ अ चाइल्ड और रादर व्हेन यू बाइंग हीफर्स, ठीक है। आप काव स्टेज से ले लो। काव स्टेज से मतलब क्या? ग्रोथ, उसकी ग्रोथ हो रही है, वो हीफर बनेगी, हीफर बनने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। सो ग्रोथ, प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी इट विल प्रोड्यूस मिल्क, देयरफॉर लैक्टेशन। इस हर स्टेज की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है इन टर्म्स ऑफ क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। ये सब इन सब चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। तो और इन सब स्टेजेस के लिए रादर रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। इसके साथ साथ आपकी मिनरल रिक्वायरमेंट, विटामिन रिक्वायरमेंट, ये सब एकदम प्रिसाइज वे में सेटिस्फाई करना, उसके लिए बैलेंस्ड डाइट प्लान्स नीड टू बी ड्रॉन अप. Okay, you can take help from nutritionists, from veterinarians, and you can draw a balanced nutrient, balanced diet plans which are satisfying the nutrient requirements for each stage of the animal, and you can feed it to all your animals. Okay, therefore this will ensure कि आपके जो animals है वो सबसे ज़्यादा दूध दे रहे और rather they are achieving their maximum genetic potential. तो कभी कभी क्या हो जाता है, जेनेटिक पोटेंशियल तो है उस एनिमल में, पर आप उसको आप एक HF प्योर ब्रेड एनिमल को लेके आए हो और आप उसको बहुत बुरी क्वालिटी का चारा खिला रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उतना दूध नहीं देगी जितना एक HF
को देना चाहिए। जितना प्रूवन है कि एचएफ एक दिन में 25-25 लीटर दूध दे सकती है, उतना दूध वो ऑफकोर्स नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल अचीव करने के लिए उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। उसके मैनेजमेंट का एक पार्ट है न्यूट्रिशन, जो आप उसको खिला रहे हो वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसकी सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ही वो अपना जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्शन अचीव कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज़ न्यूट्रिशन। हमने हेल्थ केयर की ऑलरेडी बात की थी कि हमें डिसीज़ कंटेंजेंसी प्लान्स चाहिए, हमें रेगुलर चेकअप्स चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके एनिमल्स हेल्दी रहेंगे तो ही वो प्रोडक्शन में रहेंगे। अगर उनकी हेल्थ ख़राब हो गई तो 2-3 चीज़ें हो सकती है। जैसे पहले तो मोर्टालिटी, उस केस में यू हैव लॉस्ट योर इन्वेस्टमेंट। दूसरा हो सकता है कि अगर वो रिकवर हो भी जाए तो भी उनका प्रोडक्शन पोटेंशियल उतना जितना पहले था उतना वो लोग अचीव नहीं कर पाते। और तीसरी बात यह है कि ऑफकोर्स जितने टाइम तक वो डिसीज है आप ऑब्वियसली उसका दूध यूज़ नहीं कर रहे हो, राइट। सो आपका वो लॉस हो गया। ओके, सो दैट इज़ वाई रेगुलर हेल्थ चेकअप्स इंपॉर्टेंट होते हैं फार्म के अंदर, वैक्सीनेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और या सो दैट इज़ द जॉब ऑफ वेटनरियंस बेसिकली। ओके, सो हेल्थ केयर हमने अब तक क्या देखा? 6 पॉइंट्स देखे। स्केल ऑफ ऑपरेशंस इज लार्ज, मैनेजमेंट इज इंटेंसिव, साइंटिफिक एंड डेटा ड्रिवन। Genetics and breeding matlab you are doing selective breeding by using genomic advancements. Your farm is completely automated to ensure that you have speed of production, quality of production and efficiency in production. Finally, nutrition that you're giving to the animal is balanced, and you have adequate veterinary health care in your farm to avoid any kind of health outbreaks or other disease outbreaks in your farm, or keeping your animals in generally healthy to ensure a continuous production supply. अब यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने मेन प्रोडक्ट के अंदर और वैल्यू ऐड कर रहे हो। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट होता है दैट इज ऑफन मोर देन योर एक्चुअल मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट। सो इन दिस केस हमारे पास वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे? हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? मिल्क। तो हम मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि बटर, घी की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होती है, फिर योगर्ट जो आजकल सबको खाना होता है, फिर बटर मिल्क, फिर चीज़ भी सभी खाते हैं। सो ये सब से क्या होगा? आपका जो रिटर्न्स है, इकोनॉमिक रिटर्न्स, वो बढ़ जाएगा कंपेयर टू इफ़ यू आर ओनली सेलिंग मिल्क। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ CDF कि यू आर प्रोड्यूसिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और इसी के साथ साथ आप डंग भी बेचते हो। ओके, सो सेलिंग ऑफ डंग इज ऑल्सो एक तरह से वैल्यू एडिशन, not to your main product but to your business. Okay, so you are making milk products and you are selling the dung that an animal produces. Okay, then finally market orientation. Market orientation का मतलब यहाँ ये है कि एक कमर्शियल डेयरी फार्म हमेशा मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करता है और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ओके, मार्केट के ट्रेंड्स जैसे कि A1 A2 मिल्क का प्रोडक्शन, अभी सबको A2 मिल्क का रेज आया हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में, लेकिन फिर भी A2 मिल्क की जो कॉस्ट है उसकी वजह से अभी बढ़ गई है, ठीक है। सो वो एक मार्केट ट्रेंड हो गया। फिर ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस, जो भी ऑर्गेनिक आपने देखे होंगे, ऑर्गेनिक एग्स है या ऑर्गेनिक मिल्क है, इन चीज़ों का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर। तो ऑफकोर्स अगर मार्केट ट्रेंड्स आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जब वो ट्रेंड चल रहा है यू विल हैव अ हायर इकोनॉमिक रिटर्न कंपेयर टू पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड्स और पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग द मार्केट ओरिएंटेशन और ओरिएंटेड प्रोडक्शन। ओके, सो दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यानी कि खास बातें ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। दीज आर द 8 पॉइंट्स विच यू विल राइट इफ समबडी आस्क्स यू कि की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CDF क्या होते। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया हुआ था। व्हाट आर द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस ऑफ अ कमर्शियल डेयरी फार्म? जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है। ओके, तो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, एक कमर्शियल डेयरी फार्म से आपको किस किस तरह से रेवेन्यू मिल सकता है इसके बारे में आप सोचेंगे, या आपके लिए आपके फार्म के लिए इकोनॉमिक्स कैसे इंक्रीज होगी, रिटर्न्स कैसे इंक्रीज होंगे, ये आप सोचते हो। तो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस ऑफ द कमर्शियल डेयरी फार्म में सबसे पहले ये आ जाता है कि वो आपके लिए इनकम जनरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? आप दूध बेच रहे हो, मिल्क प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, उसकी वजह से आपके फार्म को इनकम हो रहा है। सेकेंडली, आपके फार्म में वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बेनिफिट सिर्फ आपके लिए नहीं होता, बाकी लोगों के लिए भी होता है। एज अ कम्युनिटी पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड इन योर फार्म, एंड ऑफ कोर्स एज अ कम्युनिटी एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाती है इस केस के अंदर। सो
a commercial dairy farm will generate a lot of employment compared to a normal farm. Okay, then asset creation. एसेट क्रिएशन का मतलब ये है कि एक कमर्शियल डेयरी फार्म एस्टैब्लिश करना अपने आप के लिए एसेट्स क्रिएट करने के बराबर होता है. जैसे लैंड, when you're buying land, that is an asset for you. When you're buying animals, they are assets for you. When you are establishing yourself in a market, that is also an asset for you. Okay, so it will generate income, it will generate employment, it will create assets, it will provide nutritional security. For whom? For the entire, say, area wherever you're selling your milk, because milk is a very nutritious product. इसीलिए जैसे अमूल ने किया था, अमूल ने जैसे मिल्क ग्रिड एस्टैब्लिश करी थी इंडिया में, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हैड इंक्रीज्ड. ओके, so that provided nutritional security to the entire nation in one way. So a commercial dairy farm will provide nutritional security to the society. Then वैल्यू एडिशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. वी आर प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, वी आर सेलिंग डंग एंड वी आर एडिंग वैल्यू टू आवर ओन बिजनेस. सो ऑफ कोर्स इट इज गिविंग अस रेवेन्यू. एंड फाइनली देयर इज ऑलवेज एन एक्सपोर्ट पोटेंशियल. When you're establishing a commercial dairy farm or when you're establishing something at a large scale, you're producing so much product कि often there will be left over. आप अपनी डिमांड को सेटिस्फाई कर लोगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बचेगा उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. बट ऑब्वियसली यू शुड अडहियर टू द एक्सपोर्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. जब आप उस लेवल का या जब आप उस क्वालिटी का मिल्क प्रोड्यूस करोगे इस केस में, तो ही आप अपने मिल्क को एक्सपोर्ट कर सकते हो. बट देयर इज ऑलवेज पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट. ओके, अभी रिसेंटली अमूल हैज़ गॉन टू USA. सो व्हाट इज दैट? इट इज़ एन एक्सपोर्ट पोटेंशियल. ऑलराइट, ओके. नाउ व्हाट वील डू इज़ वील कंपेयर कि इंडिया में, जैसे मैंने कहा था पहले कि हम इंडिया में क्यों नहीं हो रहा कमर्शियल फार्मिंग, वील टेक अ लुक एट इट. ओके, फर्स्ट वील सी व्हाट इज द कंट्रास्टिंग पॉइंट और व्हाट आर द कंट्रास्टिंग पॉइंट्स बिटवीन डेयरी फार्मिंग इन इंडिया एंड डेयरी फार्मिंग इन अदर कंट्रीज. सबसे पहले तो ये बात है कि इंडियन सिनेरियो करेंटली कैसा है. वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिल्क. ओके, बट ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम है, ये जो मिल्क आ रहा है, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम एनिमल्स हु आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट. इट्स कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ एनिमल्स हु आर प्रोड्यूसिंग लिटिल. इसको याद रखने के लिए ये याद रखना कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मेक्स अ माइटी ओशन. ओके, तो वी हैव एनिमल्स जिनका जेनेटिक पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे मतलब थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में. जैसे मैंने यहाँ लिखा है 4 to 5 kg हमारा एवरेज है. ठीक है, एक एनिमल हमारे कंट्री में एवरेज 4 to 5 kg प्रोड्यूस कर सकता है. दैट इज़ वेरी लेस. ओके, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे पास, इसीलिए हमारा मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है. ओके, अब हमें करना क्या है, और ऑफ कोर्स इट इज़ क्रूशियल टू द फार्मर्स लाइवलीहुड, क्योंकि हमारे पास फार्मर्स छोटे छोटे हैं. वी हैव स्मॉल फार्मर्स जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 मिल्क एनिमल्स होते हैं. ओके, so what our next step should be is that we need to improve the production of each animal in our that we have in our country, ताकि overall milk production भी increase हो जाए. ठीक है, so obviously there has been progress, but of course और भी हमेशा there is always scope for improvement. therefore हम हमेशा देखेंगे कि आगे कैसे बढ़े. ठीक है, now when you're comparing India to other countries, you should think of one thing कि हमारे पास farmers छोटे हैं. काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको इसी से आ जाएंगे. स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो है, ऑफ कोर्स बिकॉज आवर फार्मर्स आर मोर मार्जिनल, हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है, स्मॉल स्केल होता है. जबकि बाहर की कंट्रीज़ में स्केल ऑफ ऑपरेशन हर फार्मर का या मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स का लार्ज स्केल पे ऑपरेशन होता है. तो ऑब्वियस सी बात है. अच्छा, वील कम टू दैट लेटर. सेकेंडली, जब हम स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक छोटे फार्म के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती जितनी एक बड़े फार्म के अंदर होगी. सो इंडिया का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रेट जो है और जो मैकेनाइजेशन रेट है वो कम है अभी, बट कंपेयर टू अदर दैट इज़ कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज जिनके पास टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन फार्म के अंदर होता है ज़्यादा करके. थर्ड पॉइंट इज़ ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स. हमने बात की थी किसकी, ऑफ यूटिलाइजिंग द genomic advancements which are coming up like MOET और यूजिंग मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन. ये चीज़ें इंडिया में इतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं होती है क्योंकि पहले तो अवेयरनेस नहीं होती फार्मर्स के अंदर. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया के अंदर हम लोग जेनोमिक एडवांसमेंट्स इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं. बाहर जो है, in order to improve their breeds, in order to improve their entire stock, the animals used, the farmers will use genomic advancements and they will make sure that the next generation of progeny that they are producing will give higher yield compared to the parental generation. Okay, तो उनकी जो
हाई हील तो हमारे पास भी होता है, पर उनका जो रेट ऑफ जेनेटिक सक्सेस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अस. ओके, तो इसके लिए बिकॉज दे आर यूजिंग एडवांसमेंट्स, राइट. ओके, सो द फोर्थ पॉइंट हियर इज 1 2 3 4. फोर्थ पॉइंट इज फीड एंड न्यूट्रिशन. फीड एंड न्यूट्रिशन, जब आप छोटे फार्मर के बारे में सोचते हैं तो उनके केस में फीड एंड न्यूट्रिशन कैसा होता है, वो अपने एनिमल्स को ग्रीजिंग के लिए ले जाते हैं. सो ऑब्वियसली बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा उससे, ठीक है. तो बाहर की कंट्रीज़ में वो लोग क्या करते हैं, स्टॉल फीडिंग करते हैं. एनिमल्स अपने पेंस के अंदर बंधे होते हैं, इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होते हैं, एंड दे आर फेड रेशंस आर ब्रॉट टू देम एंड दे आर फेड इन अ प्रिसाइज मैनर. ओके, सो फीड एंड न्यूट्रिशन हमारे यहाँ पे ग्रेजिंग होता है और उनके यहाँ पे स्टॉल फीडिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ स्टॉक हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे यहाँ पे जब छोटे फार्मर्स की बात करते हैं हम, तो इंडिया के अंदर कच्ची हाउसिंग होती है, पेन एंड रन सिस्टम्स हो गए या एक्सटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या हर बार उनको मतलब सिंपली बांध के रखा हुआ है. इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम इतना नहीं होता इंडिया में. ओके, बट बाहर के देश में जैसे हमने बोला था स्टॉल फीडिंग होती है, वैसे ही स्टॉल फीडिंग कब कर सकेंगे, जब उनके पास प्रॉपर हाउसिंग है, प्रॉपर शेल्टर है एनिमल्स को रखने के लिए, ताकि एनिमल्स बाहर नहीं जा रहे, दे आर स्टेइंग इनसाइड एंड यू आर ब्रिंगिंग द फूड टू देम. ओके, सो उनके लिए लाइफ स्टॉक हाउसिंग जो है वो प्रॉपरली रखी होती है. द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ हीट, कोल्ड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज देयर. एनवायरमेंटल एनवायरमेंट की वजह से जो भी हमारे एनिमल्स को हो सकते हैं, डिसीजेस मान लो, पैरासाइट्स मान लो, ये सब से प्रोटेक्शन मिलती है उन एनिमल्स को. जबकि हमारे यहाँ पे एनिमल्स विल गो आउट, दे विल पिक अप टिक्स, दे विल कम बैक. ओके, ग्रेजिंग के टाइम पे टिक्स हो गया तो टिक फीवर हो जाता है. सो इससे प्रोडक्शन बहुत इफेक्ट होता है कि हम अपने एनिमल्स को कहाँ हाउस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ओके, तो बाहर के देश में क्या है, दे हैव इंटेंसिव हाउसिंग सिस्टम्स एंड वी डोंट हैव सो मेनी इंटेंसिव हाउसिंग सिस्टम्स कंपेयर्ड टू एडवांस्ड कंट्रीज. ओके, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट हियर इज प्रोडक्शन फोकस. प्रोडक्शन फोकस का क्या मतलब है, मैंने कहा था कि हमारा जो फार्मर है वो स्मॉल फार्मर है. स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ 1 या 3 मिल्क एनिमल्स के अंदर अपना गुजारा नहीं कर सकते. तो उनके पास मिल्क एनिमल्स होते हैं, उनके पास फॉडर लैंड होता है, उनके पास क्रॉप लैंड होता है, मतलब उनके पास पोल्ट्री होती है. तो व्हाट दे डू इज दे डू मिक्स्ड फार्मिंग या इंटीग्रेटेड फार्मिंग. तो दे आर डूइंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन अ वे कि उनको इनकम सोर्स ज़्यादा होना चाहिए इसीलिए. ओके, बट उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन का जो फोकस है, फोकस मतलब क्या, आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, यानी कि अपना जो गोल है प्रोडक्शन का, तो वो इस केस में क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है. ठीक है, इट इज़ अ डाइवर्स गोल और इट इज़ अ डाइवर्स प्रोडक्शन फोकस. अ स्मॉल फार्मर इज फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग मिल्क, अ स्मॉल फार्मर इज फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, अ स्मॉल फार्मर इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ऑन रेजिंग हिज चिकन्स. सो इसकी वजह से व्हाट हैपन्स, उसके पास जो रिसोर्सेज है, उसकी जो अपनी एनर्जी है, उसका जो फाइनेंस है, वो इन तीनों वेंचर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली वो किसी भी एक वेंचर के अंदर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि ऑफ कोर्स फाइनेंस डिवाइड हो गया, रिसोर्सेज डिवाइड हो गए, तो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि एक ही वेंचर में वो डाल के उसको बड़ा करेगा. तो इसीलिए हमारा स्मॉल फार्मर छोटा रह जाता है. जबकि बाहर के देश में जब उनका ऑलरेडी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, उन्होंने अपने सारे जो रिसोर्सेस है, अपना सारा पैसा उन्होंने उसके ऊपर डाल के रखा हुआ है. किसके ऊपर, ओनली ऑन वन वेंचर मतलब डेयरी फार्मिंग. तो वो अगर फार्मर सिर्फ डेयरी फार्मिंग कर रहा है तो वो अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फाइनेंस, अपना सारा रिसोर्स उसी में लगाएगा, तो वो छोटे से हमेशा बड़ा होता जाएगा. इजंट इट राइट? सो हमारा प्रोडक्शन फोकस क्या है, डाइवर्स. बट बाहर प्रोडक्शन फोकस क्या है, फोकस्ड ऑन ओनली डेयरी फार्मिंग और रादर कमर्शियल डेयरी फार्मिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज वेटनरी केयर एंड हेल्थ. वेटनरी केयर इंडिया के अंदर स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे कह सकते हैं. ओके, स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, जो नंबर ऑफ वेटनरियंस है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर ऑल द विलेजेस जहाँ पे जाके ये हो सकता है, क्या हो सकता है, एक तरह से उनकी हेल्थ का, एनिमल्स की हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है. तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स टू नंबर ऑफ वेटनरियंस इज़ वेरी लो. और अगर आप नंबर ऑफ एनिमल मतलब देर आर लेस नंबर ऑफ वेटनरियंस एंड मोर नंबर ऑफ एनिमल्स इन आवर कंट्री. सो हम लोग इतनी छोटी कम्युनिटी ऑफ वेटनरियंस इज नॉट एबल टू एडिक्वेटली केयर फॉर सो मेनी एनिमल्स इन द कंट्री. ओके, जबकि बाहर के देश में व्हाट हैपन्स इज लॉट्स ऑफ पीपल गो इनटू वेटनरी साइंस, lots of veterinarians are produced and they are
मैनेज्ड एफिशिएंटली, ताकि उनके जितने भी एनिमल्स हैं वो प्रॉपरली उनको हेल्थ कवरेज मिल सके. ओके, सो ऐसे वेटनरी केयर का एक भी पॉइंट हो जाता है कि कॉन्ट्रास्टिंग है इंडिया एंड अब्रॉड के अंदर. फिर एनवायरमेंटल कंसिडरेशन जो पॉइंट है वो फीड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है. हमने कहा था कि हमारे कंट्री में ग्रेजिंग ज़्यादा होती है. ग्रेजिंग की वजह से एक और प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग. जब ओवर ग्रेजिंग होता है तो टॉप सॉइल लूज हो जाता है और सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है. तो ऑफकोर्स ये एक एनवायरमेंटल कंसिडरेशन है हमारे देश का कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है. ओके, देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रेगुलेशन. गवर्नमेंट सपोर्ट होना किसी भी वेंचर को या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है. किस फॉर्म में? पॉलिसीज़ के फॉर्म में, रेगुलेशंस के फॉर्म में, सब्सिडीज़ के फॉर्म में. अगर ये हमारे पास नहीं है तो हमारा जो छोटा फार्मर है वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा. तो इंडिया का जो करंट गवर्नमेंट रेगुलेशन है, इट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स ब्रीड इम्प्रूवमेंट. ओके, बट कमर्शियल डेयरी फार्म के अंदर हमने देखा था मैकेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ ब्रीड इम्प्रूवमेंट नहीं, राइट. सो हमारी फार्मर्स को इतनी सब्सिडी नहीं मिलती है ज़्यादा करके मैकेनाइजेशन करने के लिए अपने फार्म की. उनको ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जबकि बाहर के देश में उनको ज़्यादा करके इंसेंटिव्स मिलते हैं या सब्सिडीज़ मिलते हैं कि आप लोग अपने फार्म को कमर्शियलाइज़ करो, अच्छी वाली ब्रीड्स लेके आओ, ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करो. ओके, सो ये गवर्नमेंट का सपोर्ट एक होना बहुत ज़रूरी होता है, इंडिया के लिए भी और बाहर भी, किसी के लिए भी. ओके, नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेशन. हमने मार्केट ओरिएंटेशन की उधर बात की थी कि हम लोग मार्केट के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे, ठीक है. बट इंडिया के केस में क्या होता है, क्योंकि हमारा फार्मर छोटा है, स्मॉल स्केल फार्मर, हमने कहा था हमारा प्रोडक्शन फोकस क्या है, डाइवर्स प्रोडक्शन फोकस है. और हमारा इंडियन मार्केट इतना बड़ा है कि हम लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही काफ़ी सारा मिल्क यूटिलाइज हो जाता है. तो हम लोग थोड़ा थोड़ा दूध प्रोड्यूस करते हैं, या एक छोटा फार्मर थोड़ा थोड़ा दूध प्रोड्यूस करेगा और वो उसके घर में ही काफ़ी हद तक कंज्यूम हो जाएगा, उसका सेल नहीं होगा या उसका सेल नहीं होगा, राइट. जबकि बाहर के देश में अगर वो लोग कमर्शियल डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो उनका मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, ग्लोबल है. हमारा मार्केट ओरिएंटेशन डोमेस्टिक है. तो व्हाट दे डू इज दे प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट. तो उनका गोल ही है हमको एक्सपोर्ट करना है, हमको एक ग्लोबल लेवल पे अपने दूध को लेके जाना है, ठीक है. तो मार्केट ओरिएंटेशन उनका ग्लोबल होता है, यानी कि एडवांस कंट्रीज़ के अंदर मार्केट ओरिएंटेशन ग्लोबल होता है और इंडिया के अंदर मार्केट ओरिएंटेशन इज स्टिल डोमेस्टिक. ओके, देन फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सर्विसेज. एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब ये होता है जो डेवलपमेंट्स लैब के अंदर हो रही है उसको हम फार्मर तक लेके जा रहे हैं. हम फार्मर को बोल रहे हैं कि भाई देखो ये डेवलपमेंट हुई है, अब आप इसको अडॉप्ट करो. या हम उनको कुछ नई चीज़ सिखाने जा रहे हैं, उनके अंदर अवेयरनेस इंक्रीज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में. हमारे फार्मर को अगर पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है, एजुकेशन प्रोग्राम्स आर लैकिंग, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड. तो इस केस में व्हाट हैपेंस, आवर फार्मर्स रिमेन अनअवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. ओके, सो बाहर के देश में दे हैव, और एडवांस कंट्रीज़ के अंदर रादर, दे हैव टारगेटेड एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो फार्मर्स की स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो फार्मर्स की एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, और फार्मर्स इसी तरह अपने फार्म के अंदर नए नए प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से फार्म की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है फाइनली. ओके, तो ये 11 कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स हमने देखे इंडिया वर्सेस अब्रॉड के अंदर. सबसे पहला क्या था, पहला पॉइंट था स्केल ऑफ ऑपरेशंस, स्मॉल स्केल वर्सेस लार्ज स्केल. Technology adoption and mechanization is larger in or it is at a bigger scale in advanced countries, it is at smaller scale in India. Breeding and genetics, genomic advancements are not so utilized in India while they are utilized outside. Feed and nutrition, India में overgrazing, India में grazing is still practiced, while outside they will do stall feeding of the animals and provide balanced nutrition plans. Okay. लाइफस्टॉक हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आवर हाउसेज आर स्टिल नॉट इंटेंसिवली मैनेज्ड, जबकि बाहर इंटेंसिव हाउसिंग सिस्टम्स होते हैं, बाहर यानी एडवांस कंट्रीज़ के अंदर इंटेंसिव हाउसिंग सिस्टम्स होते हैं. प्रोडक्शन फोकस फॉर इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स इन द सेंस दैट इंडियन फार्मर इज डूइंग मिक्सड फार्मिंग. and production focus globally is very oriented, production focus in advanced countries is very oriented towards simply one venture, that is dairy production. Therefore the entire resources that they are utilizing go into a single venture instead of being split into 3 or 4 जितने भी ventures हमारा Indian farmer कर रहा है. Next point is veterinary care and health. In India, the distribution of veterinarians is very sparse. That means there are not enough veterinarians to cater
to however many animals are present in India. Okay, so the veterinary healthcare coverage for the Indian animals is not as much as happens in advanced countries. Environmental considerations for India or Indian system are that feed and nutrition में हमने देखा था कि grazing होता है, so overgrazing की वजह से topsoil becomes loose and finally it will cause soil erosion and will lead to an environmental problem. Then government support and regulation in India is catered toward breed development, while outside they will give subsidies for mechanization, for buying high quality breeds, etc. Market orientation of India is domestic, while that of advanced countries is global. And finally, education and extension services in India are not exactly tailored or well developed enough to make sure that the farmers are becoming aware of whatever advancements are happening in the field. Jabki bahar there are targeted education programs or skill development programs for the farmers. Okay, so these are the contrasting points that are there in India versus abroad. Now what we need to do is we need to figure out how to improve systematization or mechanization in India. सबसे पहले हमने बात की थी कि इंडियन फार्मर को हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. द फर्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. वी डोंट हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव इनफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स टू सपोर्ट an all scale commercial dairy farm. So in order to go into commercialization, we need to develop our infrastructure first in terms of roads, in terms of creating a grid to make sure that the farmer's access to market is secure, in terms of cold chain logistics to make sure that when the farmer is taking his milk from his farm to the market, it's not becoming spoiled. Okay, so investment in infrastructure is number one. Number two is access to credit. क्रेडिट किसको चाहिए? फार्मर्स को. क्यों चाहिए? मैकेनाइजेशन करने के लिए, ब्रीड डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे इक्विपमेंट खरीदने के लिए, अच्छा इक्विपमेंट. तो उनके पास क्रेडिट के लिए एक्सेस होना चाहिए. ओके, थर्डली रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज. हमने बात की कि इंडिया के अंदर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स नहीं है, तो ऑफकोर्स वी शुड है बट दे आर नॉट प्रॉपरली वेल डेवलप्ड. तो ये जो प्रोग्राम्स है हमें इनको प्रॉपरली डेवलप करना है in order to cater to the needs of the current scenario in case of जहाँ पर भी एक्सटेंशन कर रहे हैं. अगर आप मुंबई में एक्सटेंशन कर रहे हो, अगर आप दिल्ली में कर रहे हो, या आप छोटे से गांव के अंदर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इनके जो फार्मर की नीड्स है, जो नॉलेज है, वो अलग अलग होता है. तो उसको देख के वी नीड टू ड्रॉ अप एक्सटेंशन प्लान्स और एक्सटेंशन प्रोग्राम्स टू एजुकेट देम रिगार्डिंग ऑल द एडवांसमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस. ओके, और एक बात यहाँ लिखी है, रिसर्च. जो रिसर्च है इंडिया में उसका फंडिंग हमको फंडिंग शुड बी सच that research is supported. Of course research is supported in India, but there are a lot of other considerations that government has to take care of. उसकी वजह से कभी कभी रिसर्चेस के लिए फंडिंग कम पड़ जाती है. ठीक है, सो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्च को इंक्रीज़ करना, रिसर्च को प्रोत्साहन देना, ताकि नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, नए ब्रीड्स डेवलप हो सके जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ है. तो इसीलिए रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज पॉइंट नंबर 3 जो हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव मैकेनाइजेशन इन इंडिया. ओके, फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट सपोर्ट. हमने बात की थी एक्सेस टू क्रेडिट की. एक्सेस टू क्रेडिट, सब्सिडीज़ देना, किस चीज़ के लिए? मैकेनाइजेशन करने के लिए. इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट का हाथ होता है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफकोर्स होना चाहिए इस केस में, ताकि हम लोग मैकेनाइजेशन इम्प्रूव कर सकें. एंड फाइनली कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल. कोऑपरेटिव फार्मिंग से क्या होता है? देयर आर शेयर्ड रिसोर्सेज बिटवीन फार्मर्स. तो अगर एक फार्मर के पास सपोज मिल्किंग मशीन नहीं है, दूसरे फार्मर के पास मिल्किंग मशीन है, बट दे आर अ पार्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव यूनियन, सो व्हाट हैपेंस इज दोज रिसोर्सेज आर शेयर्ड बिटवीन द फार्मर्स. तो सबका भला होता है, सबको साथ लेके चलो टाइप्स. ओके, सो रिसोर्सेज आप फार्मर्स के बीच में शेयर कर रहे हो, सो व्हाट विल हैपन इज ईच फार्मर विल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क. तो क्वालिटी विल बी मेंटेन्ड एंड क्वांटिटी विल ऑल्सो बी मेंटेन्ड. ओके, so we talked about 5 points here. What were the 5 points? The first point was investment in infrastructure. Second point was access to credit. Third point was research and extension services. Fourth point is government regulations or government support. And fifth point is cooperative farming को increase करना. Okay. Next, we need to see what are the constraints. हमको पता है कि हमें ये सब करना है in order to improve commercialization in India. But of course there are always constraints जिनको हमें एनालाइज करना चाहिए बिफोर मूविंग इनटू कमर्शियलाइजेशन. ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स क्या है? सबसे पहले जब आप कमर्शियलाइजेशन में बात करें, लार्ज स्केल, इफ समथिंग इज एट अ लार्ज स्केल, ऑफ कोर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी हाई. High capital investment
इज़ द फर्स्ट कंस्ट्रेंट जिसकी वजह से पीपल डोंट वांट टू वेंचर इनटू कमर्शियल डेयरी फार्मिंग. ओके, देन लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज. हमने एक्सटेंशन सर्विसेज के बारे में बात की थी. जब फार्मर को ये सब पता ही नहीं है, जब टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उससे क्या होता है, दे आर अनेबल, or due to lack of knowledge they are unable to go into commercialization even if they want to expand their own business. The third one is feed and fodder shortage. ये ऐसी चीज़ है जो हम इतना कंट्रोल मतलब कर सकते हैं बाय प्लानिंग. फॉडर शॉर्टेजेस हमेशा प्लानिंग के थ्रू ही कंट्रोल हो सकते हैं. अगर कोई एरिया है, कोई सीजन है वहाँ पे जहाँ फीड उगा नहीं सकते, तो इट शुड बी इंश्योर्ड दैट फीड बाहर से आ रहा है. बट फीड एंड फॉडर शॉर्टेज इज ऑब्वियसली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स दैट वी हैव फॉर टेकिंग the production in India to a global to a commercialized level. Okay, then disease outbreaks के लिए मतलब जब हो जाते हैं तब उसकी वजह से बहुत लॉस हो सकता है फार्मर का. ओके, फार्मर ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने पूरे फार्म पे एफएमडी का आउटब्रेक हो गया, इट्स अ वेरी कंटेजियस डिसीज, उसकी वजह से पूरा प्रोडक्शन डाउन हो जाता है. तो व्हाट विल हैपन इज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू द फार्मर. सो डिसीज आउटब्रेक्स इज ऑल्सो वन कंस्ट्रेंट जिसकी वजह से पीपल विल नॉट वेंचर इनटू कमर्शियल डेयरी फार्मिंग. फिफ्थ वन इज मार्केट एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस. मार्केट इज ऑलवेज डायनामिक, इजंट इट? तो इसका जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसका जो सपोज प्राइस अप गई तो ऑफकोर्स फार्मर को उससे फ़ायदा होगा पर लीटर, बट अगर प्राइस डाउन जाती है तो उसका लॉस भी फार्मर को ही बेयर करना पड़ेगा. सो इट्स नॉट स्टेडी बिकॉज इट्स अ बिजनेस. सो ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से फार्मर्स विल नॉट गो इनटू CDF. नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस. सिर्फ बनाने के लिए नहीं, उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं. तो ये जो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये एक बार इधर भी चली जाती है इन अ वे कि आपका जो कोल्ड चेन आपने बनाया, अब उसको आपको मेंटेन करना है, उसका यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज़ प्रोग्रेसिंग स्मूथली, और जो भी मरम्मत करवानी है उसको करवानी पड़ती है, उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है. तो दिस मेंटेनेंस शुड बी रेगुलर, वरना क्या हो जाता है, आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया, ऑफ कोर्स एफिशिएंसी जो है ओवरऑल फार्म की वो कम हो जाती है बेसिकली. ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस. देन वाटर स्कैसिटी. कुछ एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जहाँ वाटर स्कैसिटी होती है, बहुत सीवियर होती है. तो इस केस में आप इतने सारे फार्मर्स को इतने सारे एनिमल्स को आप एक फार्मर कितना ही पानी देगा, राइट? इट्स नॉट जस्ट फॉर ड्रिंकिंग, हर चीज़ के लिए सुबह से लेकर शाम तक फार्म को धोना, एनिमल्स को धोना, उनको स्प्रिंकलिंग करना हीट के केस में, हर चीज़ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है आपको, नॉट जस्ट फॉर ड्रिंकिंग. तो ये जो है, अगर वाटर स्कैसिटी किसी एरिया में होती है तो ऑफकोर्स आसान सी बात है कि वहाँ के जो फार्मर्स है दे विल नॉट मूव टूवर्ड्स कमर्शलाइजेशन, राइट? देन लैंड फ्रैगमेंटेशन. लैंड फ्रैगमेंटेशन का मतलब ये होता है जब आपके पास एक वेंचर है और अगर आप इसको मतलब सपोज यू हैव this much land with you. Fragmentation मतलब it becomes divided into fragments. Why? Because the same land, there's a small piece of land that you have with you, and that land is you are using it for multiple operations. So what happens is one portion में you have your dairy, one portion में you have your fodder. तो आप जब पूरा land use नहीं कर पा रहे हो, you know, it can be due to lack of planning, it can be due to the fact that it has been divided within generations, like through familial inheritance, कुछ भी. सो उसकी वजह से आपके पास एक छोटा पीस ऑफ लैंड है, आप उसको भी डिवाइड कर दोगे, तो व्हाट हैपेंस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बिकम्स लेस फॉर योर कमर्शियल डेयरी फार्म और कमर्शियल डेयरी फार्म सेटअप एंड उसकी सारे ऑपरेशंस. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स की जिसकी वजह से आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स ही रख पाते हो अपने फार्म के अंदर. यू आर नॉट एबल टू एक्सपैंड टू अ वेरी वेरी लार्ज लेवल. ओके, देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस. इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. गवर्नमेंट का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको, हमारे फार्मर्स छोटे हैं, उनको क्रेडिट का एक्सेस, सब्सिडीज़ होना, प्रोडक्शन ओरिएंटेड प्रोडक्शन फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. रिसर्च फंड करना ये भी ज़रूरी होता है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. ओके, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. कमर्शलाइजेशन से वो रिलेटेड इतना नहीं है, बट या सब्सिडीज़ आर रिलेटेड टू कमर्शलाइजेशन. देन एक्सेस टू क्रेडिट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर फार्मर को एक्सेस टू क्रेडिट नहीं मिलेगा तो इस केस में वो ये सब कुछ भी नहीं कर पाएगा, राइट? सो एक्सेस टू क्रेडिट होना ज़रूरी है, फार्मर के पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, तब जाके वो, अगर उसके पास बाकी सब है भी, पैसा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा. तो एक्सेस टू क्रेडिट होना ज़रूरी है फार्मर के लिए. सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स इन जनरल जिसकी वजह से पीपल आर नॉट दे आर रिलक्टेंट टू वेंचर इनटू कमर्शियलाइजेशन ऑफ देयर डेयरी फार्म.
Now in India what is happening is we are doing more of a mixed farming. ठीक है, mixed farming क्या होता है? सबसे पहले mixed farming का क्या मतलब होता है? ये ईजी तरीके से बोल सके तो क्रॉप लाइफ स्टॉक का इंटीग्रेशन. इसका मतलब क्या है? हम लोग क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप्स का जो रेसिड्यू हो रहा है, मतलब क्रॉप रेसिड्यू है, वो हम लाइफ स्टॉक को फीड कर रहे हैं. लाइफ स्टॉक जो डंग प्रोड्यूस कर रहा है वो हम क्रॉप्स के अंदर मैन्योर करके डाल रहे हैं. मतलब बेसिकली हम क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक को साथ में लेके वी आर डूइंग अ बिजनेस फॉर बोथ ऑफ देम. दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग. नाउ मिक्स्ड फार्मिंग से क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्सेज. हमको इनकम कहाँ से मिल रही है? क्रॉप्स के बेचने से, लाइफ स्टॉक जो दूध दे रहा है उससे. तो हमारे पास दो इनकम सोर्सेज है. इसकी वजह से क्या होता है? रिस्क जो होता है कि हम एक ही टाइप का बिजनेस चला रहे हैं, उसकी वजह से रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है. नॉट जस्ट इनकम सोर्स, रिस्क इज ऑल्सो डाइवर्सिफाई. इसकी वजह से एक और चीज़ होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. हमने क्या बोला? डंग इधर जा रहा है, तो व्हाट हैपन्स? The nutrients which are basically nutrients are being cycled throughout the ecosystem that we have created for our mixed farming, right? Then nutrient cycling होने की वजह से क्या होता है? सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता है. सस्टेनेबल प्रोडक्शन मतलब बेसिकली हम लोग कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे ज़्यादा करके. दूसरा, हम इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इको फ्रेंडली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन इज हमारा जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की वजह से सस्टेनेबिलिटी हो रही है. तो इन जनरल हम लोग एक बहुत ही होलिस्टिक सा अप्रोच लेके चल रहे हैं. ओके, तो सस्टेनेबल फार्मिंग की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑल्सो गोज डाउन. एंड देन फाइनली लेबर रिक्वायरमेंट्स. लेबर रिक्वायरमेंट्स मिक्स फार्मिंग के लिए एज सच कम होती है, पर लेबर का जो यूटिलाइजेशन होता है वो एफिशिएंटली हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपके पास क्रॉप है, आपके पास एनिमल्स है. हर सीजन में दोनों की रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेबर अलग अलग होती है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई लेबर्स रिक्वायरमेंट एक तो कम होती है, सेकेंडली लेबर का यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंटली हो जाता है. ओके, कूल, लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इंडिया में जो फार्मिंग हो रहा है मिक्स्ड फार्मिंग के लिए. इंडिया के अंदर व्हाट आर द एडवांटेजेस कि वाई वी आर प्रैक्टिसिंग मिक्स्ड फार्मिंग इन इंडिया फ्रॉम सो मेनी जनरेशंस? बिकॉज देर इज एडवांटेज टू दैट सिस्टम, राइट? क्या एडवांटेज है उसका? एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. कैसे? हमने बोला हमारे पास क्रॉप है, हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, वो लैंड फर्टाइल है, उसके अंदर हमने कुछ स्पेस में क्रॉप उगा लिया, कुछ स्पेस में हमने एनिमल्स रख लिए, तो हम पूरे लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, राइट? हमारे पास जो रेसिड्यू था वो वेस्ट नहीं गया, एनिमल का डंग वेस्ट नहीं गया. तो ये पूरा जो है ये एफिशिएंटली हमारे पास जितना भी रिसोर्स है ये यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा. रिसोर्स रिसाइकलिंग हो रहा है. रिसोर्स रिसाइकलिंग की बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्रॉप रेसिड्यू टू एनिमल, डंग टू द सॉइल फॉर फर्टिलाइजेशन. स्टेडी राउंड द ईयर इनकम मिल रहा है. हमने बोला हमारा जो इनकम है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है. ओके, नॉट जस्ट डाइवर्सिफिकेशन, पूरे साल में आपको किसी ना किसी दो बिजनेसेस चला रहे हैं हम लोग, दोनों में से किसी ना किसी बिजनेस से तो इनकम मिलेगा ही मिलेगा. ओके, देन न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं इस बात के कि आप अगर छोटा फार्मर है मिक्स्ड फार्मिंग कर रहा है तो उसकी फैमिली को उसी के फार्म के दूध से या उसी के फार्म के क्रॉप से नरिशमेंट मिल सकती है, तो वो भूखा नहीं सोएगा ऑफ कोर्स. तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं इस बात के. रिस्क मिटिगेशन इन द सेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एंड फाइनली ड्राफ्ट पावर. व्हाट इज़ ड्राफ्ट पावर? अगर आपके पास एनिमल्स है, आपके पास अगर बुल है, ओके, तो वो बुल आपके लिए बहुत सारे काम कर सकता है. जैसे फील्ड में आप उसको यूज़ कर सकते हो प्लाउइंग के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हो पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक आपका मिल्क ले जाने के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हो बेसिकली फॉर ड्राफ्ट पर्पस. ओके, तो जो भी हैवी लिफ्टिंग के काम है योर बुल कैन डू इट फॉर यू. तो ऐसे इसके एडवांटेजेस होते हैं किसके? मिक्स्ड फार्मिंग के. बट ऑब्वियसली जिस चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं. तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? मार्केटिंग चैलेंजेस. मार्केटिंग चैलेंजेस क्यों? क्योंकि यू आर प्रोड्यूसिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और इन सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मार्केट की अवेलेबिलिटी हो. सपोज एक जगह पे वो लोग सिर्फ दूध लेते हैं लेकिन दही नहीं खाते, ठीक है, तो इन दैट केस आप अगर दही प्रोड्यूस कर रहे हो उस दूध से तो कोई फ़ायदा नहीं है.
राइट या फिर अगर ऐसी जगह है जहाँ पे आप क्रॉप भी प्रोड्यूस कर रहे हो पर वो लोग वहाँ दूध नहीं पीते, तो आपका दूध रख के फ़ायदा क्या है, एनिमल्स रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो मार्केटिंग चैलेंजेस है, डाइवर्स जो प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए मार्केट ढूंढना हर बार पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सेकेंडरी फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कहा था कि मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो डाइवर्स चीज़ों में लग जाते हैं। तो एक ही हम एनिमल हस्बेंड्री वेंचर नहीं कर रहे, एक ही चीज़ पे हमारे रिसोर्सेज सारे नहीं लग रहे, तो व्हाट हैपेंस इज द ग्रोथ इन बोथ प्लेसेस विल बी स्लो, ठीक है। फिर स्केल लिमिटेशन, स्केल लिमिटेशन का मतलब अभी जैसे हमने कहा था, एक तो हमारे पास छोटा पीस ऑफ लैंड है तो उसकी वजह से स्केल लिमिटेशन, सेकेंडली हमारा फार्मर छोटा है तो उसकी वजह से भी स्केल लिमिटेशन एक तरह से होता है मिक्स फार्मिंग के अंदर। लैंड फ्रैगमेंटेशन की वजह से मोस्टली होता है स्केल लिमिटेशन। व्हाट हैपेंस इज यू आर टेकिंग द सेम लैंड एंड यू आर यूजिंग इट फॉर अ मल्टीपल एक्टिविटीज़, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज आप एक्सपांड नहीं कर पाओगे अपना ऑपरेशन, ठीक है, तो यू विल बी लिमिटेड टू अ स्मॉल स्केल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेयरिंग अंडर मिक्स्ड फार्मिंग फॉर इंडियन कंडीशंस। ये इसका क्या पॉइंट है, इंडियन कंडीशंस के लिए हम मिक्स फार्मिंग क्यों कर रहे थे, जो हमने पहले एडवांटेजेस पढ़े वो यही सब बात है। क्या बात है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज एफिशिएंट, देयर इज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, देयर इज फीड अवेलेबिलिटी लाइक क्रॉप रेसिड्यूज टू फीड योर एनिमल्स, देयर इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हैपनिंग जिसकी वजह से सस्टेनेबल प्रोडक्शन कर रहे हो, देयर इज रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एंड देन देयर इज एफिशिएंट लेबर यूटिलाइजेशन थ्रू आउट द ईयर, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट अलग अलग चेंज हो जाता है आप सेम लेबर को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए इंडिया के अंदर इतने साल तक मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस किया गया है। ऑब्वियसली जैसे हमने कहा था एडवांटेजेस होते हैं, वही एडवांटेजेस है जिसकी वजह से हम मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस करें, राइट। बट नाउ ओके, दैट इज़ वन थिंग। नाउ विल टेक अ लुक एट डेयरिंग एज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अब तक हमने क्या देखा, डेयरिंग विथ मिक्स्ड फार्मिंग, अब हम देखेंगे डेयरिंग विथ स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का मतलब ये होता है कि एक फार्मर सिर्फ डेयरी पे ही फोकस करेगा, सो सोल फोकस विल बी द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर दैट फार्मर। मतलब वो क्रॉप नहीं रखेगा, वो पोल्ट्री नहीं रखेगा, वो और कुछ भी नहीं रखेगा, सिर्फ एनिमल्स रखेगा। तो इस केस में क्या हो गया, दिस बिकम्स सिमिलर टू CDF इन वन वे। ओके, तो व्हाट हैपेंस इज जो भी नीड्स है जो CDF के लिए चाहिए, एक तरह से स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के लिए भी वही चीज़ें चाहिए होती है। क्या है, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस ब्रीड्स जैसे कि हाई यील्डिंग ब्रीड्स जो हमने बात की थी, HF साहिवाल जैसे। इंटेंसिव मैनेजमेंट, क्यों, क्योंकि आप हर बार एक चीज़ को जब मैनेज करोगे तो उसके हिसाब से आपकी एफिशिएंसी फार्म की इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक्स ऑफ सेल, किस तरह से, जब आप हाई अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो, सिर्फ मिल्क ही प्रोड्यूस कर रहे हो और मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए मार्केट ढूंढना क्या हो जाता है, आसान। जब आपको मार्केट मिल गया तो इसका मतलब है कि यू आर गेटिंग हायर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द सेम रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग। ओके, then market focus becomes very like you are focused, you're using all your resources in only one venture, therefore you are focused towards producing the demands of the market. Okay, you're not doing diverse farming, you're doing specialized farming in this case. Then higher capital investment, ये characteristic सा हो गया इसका कि ऑफ कोर्स जब आपको स्पेशलाइज फार्मिंग करना है, मैकेनाइजेशन करना है, ये सब चाहिए, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, higher returns. So in case of specialized farming there is always a potential for higher returns. अब एक सवाल आता है कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, सो लाइक आई सेड, जब एक सवाल आता है कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है बेसिकली कि यहाँ पे हम लोग इतना स्केल पे फोकस नहीं करते, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंदर क्वालिटी पे भी फोकस होता है। You are striving to maintain the quality of your product in specialized farming. Specialized farming किसी भी स्केल का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लार्ज स्केल पे ही हो, इट कैन बी टेकन अप ऑन ए स्मॉल स्केल ऑल्सो। एक फार्मर है जिसके पास सिर्फ 20 एनिमल है पर वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड फार्मिंग ही कर रहा है, सिर्फ डेयरी ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको भी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग ही बोला जाएगा। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग को भी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग ही बोला जाएगा। ओके, फ़र्क इतना है कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग हमेशा बड़े स्केल पे ही होता है। ओके, ऑलराइट, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया इज दैट
डिस्पाइट मिक्स फार्मिंग हमने देखा कि मिक्स फार्मिंग के इंडियन कंडीशंस के लिए एडवांटेजेस है. ओके, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, नाउ द फार्मर वांट्स टू शिफ्ट टूवर्ड्स स्पेशलाइज्ड फार्मिंग. क्यों? उसकी ये रीजंस है. ये रीजंस, सबसे पहला रीज़न है कि उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे. हमने ऑलरेडी देखा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन पोटेंशियल फॉर रिटर्न्स इज ऑल्सो मोर. तो इस केस में ऑफ कोर्स दैट फार्मर वांट्स टू इन्वेस्ट ऑल हिज रिसोर्सेज इन वन वेंचर ओनली इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम रिटर्न्स फ्रॉम दैट वेंचर, राइट. नंबर 2 इज इवॉल्विंग मार्केट डायनामिक्स एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की हमने वहाँ पे बात की थी, कहाँ? मार्केट ओरिएंटेशन के अंदर. कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या होंगे? ऑर्गेनिक मिल्क चाहिए, A2 मिल्क चाहिए, ऐसे ही टाइप का मिल्क चाहिए, यही मिल्क प्रोडक्ट चाहिए. तो व्हाट हैपेंस इज योगर्ट की डिमांड बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है. सो व्हेन अ फार्मर विल प्रोड्यूस ओनली दीज प्रोडक्ट्स along with his main product, when he will produce these value added products, what will happen is he will obviously get more returns from the same venture, right. तो changing consumer preferences को cater अगर वो करेगा, यानी कि उसका market orientation अगर वो market demands को satisfy करेगा, तो obvious सी बात है he will get this maximum profits. Okay, third point is technological advancements and ease specialization. What is happening is, I know कि government is not like it's not focused on giving credit for technological advancement, लेकिन फिर भी to some extent farmers are investing now, and there are advancements which can be easily gotten by the farmers in their farms. That is why milking machines, जैसे कि मैंने कहा था, तो जो मिल्किंग मशीन्स होते हैं दे आर ऑल्सो पोर्टेबल मिल्किंग मशीन्स, नॉट नेसेसरी कि वो एक ही जगह पे. सो दैट इज़ वन सच एडवांसमेंट जो एक कोऑपरेटिव के अंदर फार्मर्स बाई कर सकते हैं. उसको लेके आप स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हो धीरे धीरे करके. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स विल ईज योर स्पेशलाइजेशन और दे विल ईज द वे टू स्पेशलाइजेशन. देन availability of resources is increasing. Availability of resources and access to markets is both increasing. Why? Because of globalization and because of e-commerce. ठीक है. Now what is happening is everything is connected to everything through the internet. मतलब क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन हो गया है. मैं यहाँ इंडिया में बैठी हूँ पर यूएसए में क्या चल रहा है मुझे एक सेकंड में पता चल सकता है, ठीक है. तो इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिसोर्सेज को प्रोक्योर करना और अपने प्रोडक्ट को बेचना उतना ही आसान हो गया अभी. इसीलिए मार्केट ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है कि जाके बेचो, इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो थ्रू ई कॉमर्स ऑल्सो यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स. तो ऑफकोर्स access to market and availability of resources has become easier, and the government is also promoting that a farmer should do a particular type of farming. Okay, so they are moving towards, the government is creating policies which are tailored or which are favoring that the farmers take up certain ventures or specialized ventures or specialized farming. Okay, therefore farmers are moving towards specialized farming. Okay. Oh, one more thing was there in specialized versus commercial dairy farming. मतलब कमर्शियल डेयरी फार्मिंग जहाँ की आप बात कर रहे हो तो वो लोग सिर्फ डेयरी कर रहे हैं. स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो. आप डेयरी रख सकते हो, आप सिर्फ क्रॉप कर सकते हो, आप सिर्फ सेरिकल्चर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही चीज़ करना है या सिर्फ डेयरी करना है. पॉइंट इज यू हैव टू डू वन थिंग, नॉट मल्टीपल थिंग्स. दैट इज वाई इट इज नोन एज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग. ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक. ओके, यहाँ हमारा कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, ठीक है. अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इकोनॉमिक डेयरी फार्मिंग. इकोनॉमिक डेयरी फार्मिंग का क्या मतलब है? आप अपना डेयरी फार्म इकोनॉमिकली चला रहे हो. इकोनॉमिकली चलाना मतलब ये, इनकम इज़ ऑलवेज मोर देन एक्सपेंडिचर. अब आपको अगर मेक श्योर करना है कि इनकम इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहला पॉइंट आता है उसके अंदर रिकॉर्ड कीपिंग. यू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर फार्म. तो क्या होगा, आप उन रिकॉर्ड से डेटा निकालोगे, डेटा एनालाइज करोगे, एनालाइज करके डिसीजंस लोगे. आपकी मैनेजमेंट इंटेंसिव हो जाएगी, साइंटिफिक हो जाएगी, डेटा ड्रिवन हो जाएगी, आपका फार्म एफिशिएंटली चलेगा. जब कुछ भी एफिशिएंटली चलता है ऑब्वियसली बात है कि द रिटर्न्स आर हायर देन व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग. ओके, सो रिकॉर्ड कीपिंग इज़ इंपॉर्टेंट. ये सब जो पॉइंट्स हैं ये ऑफ कोर्स अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल फार्म रन करना है तो जो पॉइंट्स हमने कमर्शियल डेयरी फार्म में बात की थी कि जीनोमिक एडवांसमेंट्स यूज़ करो, प्रिसिशन एनिमल न्यूट्रिशन या फिर बैलेंस न्यूट्रिएंट्स दो एनिमल्स को, तब जाके वो प्रोड्यूस करेंगे. हर्ड हेल्थ मैनेजमेंट करो, रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट करो. अब रिप्रोडक्शन अच्छा वील कम बैक टू दिस लेटर.
ओके, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उनको कंफर्टेबल जितना रख सकते हैं उतना रख के उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन करवाएंगे. लेबर एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन. टेक्नोलॉजी आप जितना अडॉप्ट करोगे उतना आपका एरर कम हो जाएगा, तो और उतना फास्ट हमारा जो भी प्रोसीजर है वो होगा. ओके मतलब क्या, इन दिस केस वी आर डूइंग व्हाट, डेयरी फार्मिंग, तो हमारा डेयरी फार्मिंग का जो प्रोसीजर है वो फास्ट हो जाएगा. उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट. You have to figure out what all risks are there. Financial risk, production risk, environmental risk, ये सब आपको figure out करके पहले से ही plans बनाने हैं. Insurance खरीदना है ताकि in case of any kind of risk that takes place, you are covered financially. Okay. Then finally, market orientation and economic feasibility analysis. Market or economic feasibility analysis मतलब क्या? You have to check whether your venture is running in profit or not. ये आप कब करोगे? Records से. You have to analyze your records constantly, or in this case financial records constantly, and you have to figure out whether or not your business is running in profit. If it is running in loss, you should figure out where you are going wrong so that you उसको ठीक करके you move forward. Okay. अब हमने क्या डिस्कस नहीं किया था? रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट. एफिशिएंटली फार्म को चलाने के लिए फार्म का रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. इन द केस कि आप उसके इंटरकाविंग इंटरवल को, उसके हर्ड उसका जो डेज ओपन है, ये सब रिप्रोडक्शन पैरामीटर्स ट्रैक करोगे. यू विल मेक श्योर कि एनिमल कम्स इनटू एनिमल इज इंसेमिनेटेड इन द सेकेंड हीट आफ्टर पैचुरेशन. ये सब पॉइंट्स रखना, याद रखना ज़रूरी होता है, बिकॉज यू डोंट इवन वांट टू लूज अ सिंगल मंथ और 20 days ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम द एनिमल. ओके, तो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट इज एसेंशियल, एंड एफिशिएंट मिल्किंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो एसेंशियल टू ensure that you are getting maximum quantity and maximum quality. Maximum quantity can come from thrice a day milking instead of twice a day, and maximum quality can come from using technological adoptions like milking parlors or rather milking machines. So what will happen is your milk will be of a good quality. Okay, yeah. So that's how you will run your farm economically. Okay. Next जो topic है इसके अंदर, that was starting a dairy farm. बाकी के जो पॉइंट्स है वो सेम ही रहेंगे. इसके अंदर वी शुड फोकस ऑन 2-3 थिंग्स पहले, लाइक बाकी सब जो कमर्शियल डेयरी फार्म के रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आपको मेंशन करने होंगे स्टार्टिंग अ डेयरी फार्म के अंदर. बट उसके अंदर बिफोर स्टार्टिंग अ डेयरी फार्म, व्हाट अ फार्मर शुड डू इज दैट ही शुड डू रिसर्च एंड एजुकेशन. ही शुड गेट एजुकेटेड रिगार्डिंग व्हाट वेंचर ही इज गोइंग इनटू. ओके, उस एरिया उस वेंचर के बारे में मार्केट कितना है, उस वेंचर का कॉस्ट कितना आएगा. You should have a complete cost benefit analysis in your hand, and then only you should proceed towards dairy farming. Secondly, you should have a proper business plan planned out कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कैसे प्रोसीड करेंगे ताकि हम इकोनॉमिकली इसको चला सके. एंड देन परमिट्स और रेगुलेशन सारे होने चाहिए, जैसे GST परमिट्स या फिर एनवायरमेंटल जो टैक्स होता है वो. फिर उसके बाद सो बेसिकली आपके हाथ में सारे परमिट्स और रेगुलेशंस होने चाहिए. फिर FSSAI परमिट्स, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग दैट इज पेरिशेबल और यू आर प्रोड्यूसिंग अ फूड प्रोडक्ट रादर, तो दोज परमिट्स शुड बी देयर इन योर हैंड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस. एंड देन यू विल गो ऑन टू सिलेक्टिंग लोकेशन, चूजिंग लाइफ स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, हेल्थ, रिकॉर्ड, मार्केट एंड सेल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्लान होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अच्छी चीज़ें थोड़ी ना प्रोड्यूस कर रहे हो. ऑफ कोर्स यू आर प्रोड्यूसिंग वेस्ट ऑल्सो, दैट वेस्ट हैज़ टू गो समवेयर, राइट. सो उसकी मैनेजमेंट भी होनी चाहिए. एंड फाइनली रिस्क मैनेजमेंट भी आपको करनी चाहिए. ओके, बिफोर स्टार्टिंग अ डेयरी फार्म यू शुड हैव एवरीथिंग दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड इन योर हैंड्स. ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल एंड लैंड रिक्वायरमेंट. अब हम बात कर रहे थे किसकी, कमर्शियल, हम बात कर रहे थे डेयरी फार्मिंग की. तो डेयरी फार्मिंग स्मॉल स्केल पे होता है, मीडियम स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे भी होता है. स्मॉल स्केल पे 1 to 10 काउस का लेके होता है, मीडियम स्केल के भी अंदर 50 काउस तक होते हैं, और लार्ज स्केल तब कहा जाएगा जब एक फार्मर के पास 51 से ज़्यादा काउस हो. ठीक है. सेकेंडली, जो लैंड रिक्वायर्ड होता है स्मॉल स्केल के लिए वो होता है 1 to 5 acres, मीडियम स्केल के लिए 5 to 20 acres, एंड लार्ज स्केल के लिए मोर देन 20 acres ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड. उसके बाद जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स इसके अंदर कम होती है 5 to 20 lakhs, इसके अंदर 20 lakh to 1 crore, और इसके अंदर होती है 1 crore से ज़्यादा. ठीक है. जब आपको कोई पूछेगा कि कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स क्या है स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल के बीच में, तो ये 3 पॉइंट्स लिख लेना. क्या 3 पॉइंट्स? नंबर ऑफ एनिमल्स, लैंड रिक्वायरमेंट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट. ओके. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेयरी फार्म. Now you have a dairy farm, you have to just make sure that the farm is running efficiently. तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपके पास सबसे पहले क्या है? एनिमल्स को मैनेज करना. कैसे? उनका फीडिंग, उनका ब्रीडिंग, उनका हाउसिंग, उनका डे टू डे एक्टिविटीज़, इन सब को
ट्रैक करते रहना, इन सबको मैनेज करते रहना. सेकेंडली, लेबर मैनेजमेंट. लेबर मैनेजमेंट कैसे करोगे? बाय इंक्रीजिंग, मतलब पहले तो एफिशिएंट उनकी मैनेजमेंट करोगे इन अ वे कि यू आर ensuring that nobody is sitting idle सबसे पहले, and then secondly you are ensuring कि the appropriate skilled labor is going towards the appropriate task for them. Then you will increase the mechanization in your farm to reduce the dependence on laborers. Okay. नेक्स्ट, इक्विपमेंट मैनेजमेंट. इक्विपमेंट्स का आपके पास जो है, जो मैकेनाइज किए हुए हैं, उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो बंद पड़ गए तो आपको बहुत सारा लॉस हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को आप तो प्रोड्यूस तो कर रहे हो, पर आपको मार्केट तक उसको लेके जाना है, तो कोल्ड चेन मेंटेनेंस, आपका जो मिल्क है उसका क्वालिटी मेंटेन करना और उसका प्रोडक्शन मेंटेन करना. ठीक है. तो इंश्योरिंग दैट यू हैव प्रॉफिटेबिलिटी. सो ऑल दिस विल कम फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग. ऑफ कोर्स ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है, मैनेजमेंट है, हर चीज़ के लिए आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, तब जाके आप किसी भी चीज़ को मैनेज कर पाओगे. फाइनली ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला, रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल द फार्म एक्टिविटीज़ दैट यू हैव डन सो फार, राइट फ्रॉम एनिमल्स, लेबर, इक्विपमेंट टू योर मिल्क प्रोडक्ट्स and transport of milk products. Everything should be there in your records in order for you to go back to it, analyze it and take decisions. Okay. So that is how you organize your dairy farm or your commercial dairy farm. All right. There are some practices जिनको बोलते हैं good dairy farming practices. इसके अंदर जैसे कि हमने कहा, सबसे पहले आता है रिकॉर्ड कीपिंग. आपके पास रिकॉर्ड हर चीज़ का होना चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे. हर्ड हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है वेटनरी केयर, उनका फीडिंग, ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन, ये सब आपका हर्ड हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है. फिर लाइक आई सेड, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, फीडिंग, एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर, मिल्किंग हाइजीन में पॉइंट्स, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं. क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के अंदर बहुत पॉइंट्स होते हैं, जैसे वॉश द अडर बिफोर बिफोर मिल्किंग, वॉश योर हैंड्स बिफोर मिल्किंग, फुल हैंड मिल्किंग प्रैक्टिस करना चाहिए. अभी तो मशीन्स ही यूज़ कर सकते हैं, बट एनी वे द अडर शुड बी स्टेरिलाइज्ड विद KMNO4 सोल्यूशन बिफोर स्टार्टिंग मिल्किंग. द यूटेंसिल शुड बी क्लीन एक्सेट्रा. ये सब जो होता है उसको मिल्किंग हाइजीन के अंदर आ जाता है वो. उसके बाद टेस्ट करना चाहिए मिल्क का टू इंश्योर दैट योर क्वालिटी ऑफ द मिल्क इज़ गुड. ओके. देन क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आपके प्लेटफॉर्म टेस्ट आ जाते हैं, कि उसके अंदर आप ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट हो गया, आपका कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट हो गया. तो आप क्या कर सकते हो, राइट एट द टाइम ऑफ कलेक्शन यू कैन चेक दैट द मिल्क दैट यू आर कलेक्टिंग इज ऑफ अ गुड क्वालिटी, दैट द एनिमल डज नॉट हैव मास्टाइटिस और एनी अदर कंटामिनेशन इनसाइड द मिल्क. तो यू आर ensuring that the quality that you're producing and marketing is good. फार्म बायोसिक्योरिटी रखना ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक है उसके अंदर बाहर से अनवांटेड चीज़ें नहीं आनी चाहिए. दैट इज़ वाई फार्म पे स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी रखना, फुट डिप्स रखना, व्हीकल डिप्स रखना बहुत ज़रूरी होता है टू इंश्योर दैट आवर एनिमल्स आर सिक्योर फ्रॉम ऑल द पैथोजेंस दैट कैन कम फ्रॉम आउटसाइड. देन फाइनली फार्म मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. जब आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे तब यू कैन मेक श्योर दैट वॉट एवर economics of the farm that you're having from selling of milk and milk products is running in a profitable manner and not in loss. So these are the good managemental practices also known as GDFP, good dairy farming practices in this case. GDFP, अगर question आता है कि good dairy farming practices क्या है, you should write all this. ये basically एक बहुत ही क्या बोलते हैं common sense सा subject है कि जब आपको कुछ चीज़ें आप अपने आप को उस प्लेस में सोचोगे आपको क्या क्या करना चाहिए, यू कैन ईजिली राइट डाउन दीज प्रैक्टिसेस. ओके, कूल. सो नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटीज़ इन डेयरी फार्मिंग. अपॉर्चुनिटीज़ इन डेयरी फार्मिंग इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तभी तो जाके पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स स्पेशलाइज्ड फार्मिंग नाउ. इंक्रीज कैसे हो रही है? देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स. कैसे हमने बात की थी, हेल्थ कॉन्शियसनेस हो रही है consumers में. So they are becoming more conscious, they have a demand for specific types of products जिसकी वजह से, और specific types of dairy products जिसकी वजह से they are consuming more amount of milk and other milk products. So the demand is increasing. Technology is advancing in the way कि you are getting good quality semen, you have assisted reproductive technologies and you have e-commerce for selling and buying of resources. That is selling of your products and buying of your resources, right? Feed resources, any other resources that you want to buy, you can buy from the online platforms. So you have technology advancements. And finally there is diversification. How? Think about agrotourism.
आप किसी फार्म पे जा रहे हो, you can make sure that people are paying to see your farm. So that is agrotourism. Biogas production, you have a lot of dung at your hands, you can produce the biogas and sell it. Then organic dairy farming is also a type of diversification. And finally, value addition and branding. Value addition, like we already talked about it, milk and milk products production and sell of value added products. ओके तो इस तरह से हमारे कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इन इंक्रीज डिमांड, ड्यू टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू अ डाइवर्सिफिकेशन पोटेंशियल फॉर द मार्केट. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग. इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता. हमने मिक्स्ड फार्मिंग की बात की थी. इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी उसी तरह होता है कि उसके अंदर आपके पास एक क्रॉप है, या you're taking two systems together, you're integrating them together and you're going forward with it. Okay, तो जैसे different types of, ये उसका basic principle होता है हमेशा, recycle all waste that you have. So you're basically producing very very low waste from integrated systems. तो different systems are working together in this case and the productivity is higher than the sum of individual production. मतलब क्या, अगर आपके पास सिर्फ फिश है, अगर आपके पास सिर्फ डक है, तो आप ये जितना प्रोडक्शन देगा x, ये प्रोडक्शन देगा y. जो हमारा इंटीग्रेटेड से प्रोडक्शन है z विल ऑलवेज बी हायर देन x प्लस y. ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट एनीवे दैट्स व्हाट इट मीन्स कि अगर आपके पास एक ही वेंचर है तो उससे ज़्यादा आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिटर्न्स देगा. ठीक है. एंड देन फाइनली मेजरली दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं यहाँ पे. पहला होता है फिश लाइफ स्टॉक सिस्टम और दूसरा होता है क्रॉप लाइफ स्टॉक सिस्टम. क्रॉप लाइफ स्टॉक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर. ओके, अब हम देखेंगे फिश लाइफ स्टॉक सिस्टम्स क्या होते हैं. फिश लाइफ स्टॉक सिस्टम के अंदर यू हैव फिश एंड लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक मतलब क्या, लाइफ स्टॉक के अंदर आ गया कैटल, उसके अंदर आ गया पिग्स, उसके अंदर आ गया आपका पोल्ट्री. पोल्ट्री में आपके होते हैं चिकन्स और आपका होता है डक. ठीक है. अभी हर चीज़ के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है लाइक आई सेड. तो कैटल फिश को जब आप साथ में रख रहे हो, फिश कहाँ होते हैं, पॉन्ड के अंदर. पॉन्ड के अंदर क्या होता है, फिश खाते क्या है, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन. तो जो मैन्योर होता है जो एनिमल्स के एक्सक्रीडा से आता है, वो जब पॉन्ड के अंदर उसको मैन्योर करते हैं पॉन्ड को, उससे तो द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन इंक्रीजेज इन द पॉन्ड, thus creating food for the fish. therefore fish की भी growth होती है और cattle तो हम साथ में उगा ही रहे हैं. so that is an extra venture that we are doing in this case. okay, so it increases natural food organism and bacteria in the pond which produces fine feed for your fish. तो अब रिक्वायरमेंट कैसे होती है, 5 to 6 काउज रिक्वायर्ड होते हैं 1 हेक्टर ऑफ पॉन्ड को मैन्योर करने के लिए. ठीक है. उसी तरह अगर हम पिग फिश सिस्टम में देखें, पिग फिश के अंदर पिग का यूरिन और पिग का डंग भी यूटिलाइज होता है. ओके, बोथ ऑफ द थिंग्स आर यूटिलाइज टू फर्टिलाइज द पॉन्ड फॉर क्रिएटिंग फीड फॉर द फिश. ओके, तो इसके अंदर क्या है, 40 पिग्स आर नीडेड फॉर वन हेक्टर ऑफ पॉन्ड. यहाँ पे कितने थे, 5 to 6 काउज फॉर 1 हेक्टर ऑफ पॉन्ड. यहाँ पे 40 पिग्स फॉर 1 हेक्टर ऑफ पॉन्ड. ओके, नेक्स्ट you have poultry fish system. Poultry fish के अंदर what happens is, I don't know whether you can see this picture, but this is basically chicken. Chicken को पॉन्ड के ऊपर हाउस किया गया. तो चिकन में क्या होता है, जो भी ड्रॉपिंग्स उनके गिरेंगे वो डायरेक्टली पॉन्ड के अंदर गिरेंगे. ओके, तो यहाँ पे ले जाने की भी जरूरत नहीं है डंग को पॉन्ड में, डायरेक्टली it's the manure is directly going into the pond, it's creating food for the fish are eating it, they are growing. okay, so it is a good fertilizer for producing phyto and zooplankton. इसकी वजह से क्या होता है, स्पेस का जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंटली हो जाता है. आपको चिकन को अलग से और फिश को अलग से हाउस करने की ज़रूरत नहीं होती है. आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर डाल दो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ऑफ लेबर ऑल्सो. ठीक है. एंड इट मेंटेन्स अ गुड हाइजीन. नाउ द नेक्स्ट कूल थिंग अबाउट द डक फिश सिस्टम. ओके, अब हम डक फिश सिस्टम की बात करेंगे. इसके अंदर एक कूल थिंग ये होता है कि इन एडिशन टू गिविंग मैन्योर, यानी कि in addition to giving the manure to the pond, the duck are also doing one more thing. They are consuming the predators. जो of course fish क्या करते हैं, they produce eggs कहाँ होते हैं, pond के अंदर. ये जो eggs है इसको खाने वाली बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे juvenile frogs, tadpole, dragonfly, ये सब कहाँ रहते हैं, pond के ऊपर या pond के अंदर. तो these are predators or natural predators for the fish eggs.
तो अगर ये फ़िश को खा गए या हमारे एग्स को खा गए तो ऑब्वियसली बात है कि फ़िश का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो डक्स क्या करते हैं, दे विल कंज्यूम और दे विल प्रे ऑन दीज predators. Okay, the ducks will eat all these predators who are eating the eggs of the fish, thus protecting the eggs, and therefore जो egg fish का production है वो भी increase हो जाता है. ठीक है, not just from the food but also from the protection that ducks will give to the eggs, therefore the number of fish in the pond will gradually increase. ठीक है, so this is like the cool thing मेरे को जो लगता है about duck fish system. सो मोस्ट यूज्ड इंडियन ब्रीड जो मोस्ट यूज डक ब्रीड जो है, जो यूटिलाइज होती है इसके अंदर डक फिश के अंदर, वो उसका नाम है इंडियन रनर डक. ओके ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. तो हमने अब तक क्या देखा, हमने एक क्विकली सम अप करेंगे. हमने देखा कमर्शियल डेयरी फार्मिंग. कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के अंदर हमने देखा उसका डेफिनेशन, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, mixed farming as dairy, and why people are moving from mixed farming towards specialized farming. Then we saw what is economic dairy farming. मतलब क्या, all the practices that you will follow to make sure that your returns are more than your expense for the farm. फिर हमने देखा कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ डेयरी फार्म. व्हेन अ फार्मर कम्स एंड आस्क्स यू कि आई वांट टू स्टार्ट अ डेयरी फार्म, व्हाट शुड आई डू, तो what is the list of points that he should know or she should know before they are starting a dairy farm. Then we saw how to organize a dairy farm, right from the organization of animals, organization of laborers, then organization of your products, equipments, and finally record keeping. And then finally हमने देखा कि इंडिया के जो opportunities है डेयरी फार्मिंग में वो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, that is because of technological advancements, because of increase of market, and finally because there is a potential for diversification in terms of say organic farming or value addition or agrotourism and stuff like that. Okay, so this was like a total gist of what we saw today in LPM Unit 1. इसी तरह हमारा लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का यूनिट 1 जो यूपीएससी ने सिलेबस उसके लिए आउटलाइन किया है वो वी हैव फिनिश्ड दैट. ओके, कूल, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय गाइस.